تو اسی لیے فرمایا کہ جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کریں۔ اور ایک فضیلت آپ کو بتاؤں درود پاک کی، مختصر سا درود ہے لیکن اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ درود پاک کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ درود پاک جو آدمی 100 مرتبہ اگر پڑھے گا تو اس کے 100 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے سال کے اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو بھائی 100 مرتبہ ہم پڑھیں گے، ہماری امتیں تو اتنی ہے نہیں، لیکن اگر اس نیت سے پڑھیں گے کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب پر درود پاک بھیجیں گے تو اس پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، تو 80 دفعہ 100 مرتبہ پڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ دنیا کے سارے کام ہم کرتے ہیں، اس اسپیکر کے بغیر ہی چاہیے، کام ہی خراب کرتے ہیں۔ دنیا کے ہم سارے کام کرتے ہیں اور اس میں مشقت بھی برداشت کرتے ہیں، باقی اپنی ضروریات اس کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی فکر بھی رکھتے ہیں۔ مثلا عام طور پر کوئی آدمی ہے وہ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہے، اس کو بند کر دو، ہاں ٹھیک ہو۔ وہ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتا ہے، اپنی ملازمت میں، اپنی ڈیوٹی میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکانداری میں۔ کوئی آدمی اس سے کہتا ہے کہ بھائی اس دن ہم نے خوشی کی ایک تقریب منعقد کرنی ہے، آپ نے آنا ہے۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں تو ملازمت کرتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو اتنی فضیلت ہے جو جمعے کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جمعے کے متعلق، تو ہمارا یہی ذہن ہونا چاہیے کہ اس دن میں خاص طور پر اللہ کی عبادت کروں گا۔ کوئی کام کے لیے بھی کہے تو میں کہوں گا بھائی جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہی کروں گا، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے یہ دن جو ہفتے کے 7 دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کو یہودیوں کے سامنے بھی رکھا، اور یہودیوں نے کون سے دن کو پسند فرمایا؟ یوم السبت، ہفتے والا دن۔ وہ ہفتے والے دن کو خاص جانتے تھے، خاص مانتے تھے، اور نصارہ جو ہے وہ اتوار والے دن جو ہے وہ اس کو اپنے طور پر بڑا خاص سمجھتے ہیں، بڑا خاص مانتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دن عطا فرمایا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ یہ سید الایام ہے، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ تو جمعے کی جو نماز ہے یہ ظہر کے قائم مقام ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر جب جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس کے بعد سارے یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی سنتیں نہیں ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ سنتیں ہیں، مؤکدہ۔ جس طرح ہم صبح فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں نا، وہ پڑھنی ضروری ہے اور مؤکدہ ہیں۔ جس طرح کہ ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، 2 بعد میں پڑھتے ہیں، یہ مؤکدہ ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز، فرض نماز کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے اندر پہلے 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک روایت کے مطابق 4 رکعت یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ اکثر و بیشتر سنتیں اپنے گھر کے اندر ادا کرتے تھے۔ سنت نماز گھروں کے اندر، حجرے کے اندر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے، اور فرض نماز جو ہے وہ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ تو اگر کوئی اہتمام اپنے گھروں کے اندر کرے، گھر کے اندر خاص کوئی انتظام ہو نماز پڑھنے کا، گھر کے اندر اس طرح شور شرابہ نہ ہو جس کی وجہ سے نماز کے اندر خلل آئے، اگر آپ کوئی اس طرح جو ہے وہ وقت میسر ہے تو اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ سنت نماز پڑھ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔
लेकिन आमतौर पर घरों के अंदर इसका एहतमाम न होने की वजह से अफजल और बेहतर तरीका यह है कि वो मस्जिद के अंदर ही अदा करने चाहिए। अगर कोई अदा घर में करता है, उसका एहतमाम है, तो वो करे। लेकिन बाकी इसका यह मतलब नहीं है कि हमने जुमे की 2 रकात पढ़ी और उसके बाद हमें इतनी जल्दी होती है कि अल-अमान वल हफीज, किस तरह दौड़कर भागकर जो है ना वो बाहर की तरफ जाते हैं, अल्लाह का जिक्र तलाश करने के लिए अल्लाह के घर में आते हैं। जुम्मे की नमाज की इतनी ज्यादा फजीलत है, अगर सुन्नत मुअक्कदा अदा नहीं करेंगे तो जुम्मे की फजीलत कहां से हासिल होगी? तो इसलिए जुम्मे की नमाज के बाद सुन्नतों का एहतमाम करना, सुन्नतें अदा करना, ये बहुत जरूरी है। और एक रिवायत के मुताबिक उसमें 4 का भी जिक्र है और एक में 2 का भी जिक्र है। इसलिए जितने भी हनफी मसलक हैं वो सारे के सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं कि भाई जोहर की जो 4 रकतें हैं ना, 4 रकत जो हम जोहर की नमाज से पहले पढ़ते हैं, ये फर्ज नमाज के बाद यही सुन्नत मुअक्कदा अदा करें। और एक रिवायत में 2 का भी जिक्र है, बाज कहते हैं नहीं 6 पढ़नी चाहिए, लेकिन कम अज कम जो मुअक्कदा जिसके बारे में इत्तिफाक है वो जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा नमाज नामुकम्मल है। वो अक्सर बेशतर अहबाब ये पूछते रहते हैं, हालांकि देखिए कितने सालों से जुम्मे पढ़ रहे हैं, तो कम अज कम हमें इन मसाइल का भी सीखना और इन मसाइल का जानना जरूरी है। जिस तरह हम दुनियादारी एतबार से एक दूसरे से मशवरा करते हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके माहिर से मशवरा करते हैं कि भाई हम ये काम करवाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या इंतजाम किया जाए, वो आपको मशवरा देता है। इसी तरह दीन के मुतालिक भी अहले इल्म से हम पूछें और उनसे पूछें कि भाई ये फर्ज, ये फरीजा, इसकी अहमियत क्या है, और अल्लाह पाक ने जो हमें इसके अदा करने का हुक्म दिया है उसकी क़ुयूद क्या है, उसके हुदूद क्या है, उसके पढ़ने का अंदाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में क्या है, ये सीखना है। रस्मी तौर पर नमाजें नहीं अदा करनी, नमाजों को इबादत समझकर अदा करना है, अल्लाह की खुशनुदी अदा करनी है। वरना कुरान मजीद के अंदर नमाजियों के लिए हलाकत का जिक्र फरमाया है अल्लाह पाक ने। क्या फरमाया है सूरतुल माऊन में? फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाजियों के लिए हलाकत है। कौन से नमाजी? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से बेखबर हैं, नमाजों का एहतमाम नहीं करते, नमाजों से बेखबर हैं, या नमाजों में होते हैं तो नमाज के अंदर जो करने वाले काम है उधर मुतवज्जे नहीं होते, ये भी नमाजों से बेखबर हैं। तो ऐसे नमाजियों पर हलाकत का ऐलान किया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से भी और कुरान मजीद की इस आयत करीमा के अंदर भी। तो हलाकत से बचने के लिए और रियाकारी से बचने के लिए नमाजों को खुशू और खुजू के साथ अदा करना है कि मेरे रब की तरफ से फरीज़ा है, रस्मी तौर पर नहीं है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर आता है कि बाज ऐसे नमाजी भी हैं जो नमाज अदा करते हैं, लेकिन उनकी वो नमाज पुराने कपड़े के अंदर लपेट कर उसके मुंह पर मार दी जाती है, और वो नमाज बदुआ देती है उस नमाजी को कि अल्लाह ताला तुझे भी जाया करे जिस तरह तूने मुझे जाया किया है। ये नमाज का ये सलूक होता है नमाजी के साथ। लेकिन अगर नमाज अच्छी पढ़ी जाए ना तो फिर वो नमाज इसके हक में दुआ देती है, और नमाज अल्लाह की खास जो है इबादत है, और अल्लाह ताला का बुनियादी हुक्म है तमाम इबादतों में, सबसे बुनियादी इबादत यही है। तो इसीलिए जो है हर चीज को सही मानों के अंदर दिल के इखलास के साथ अदा करना ये इबादत है। रस्मी इबादतें ना हो, रस्मी इबादतें ना हो, ये तो रस्मी इबादतें, रस्मी जिक्र अस्कार तो वो तो तोते की रट की तरह, उसको जो सिखाएंगे वो बोलेगा, लेकिन जब हकीकत आएगी तो वहां पर वो नहीं बोल पाएगा। हमारी रट उस तरह नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर सीखने का जज्बा होना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन बड़ी बड़ी उम्र के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तालीम, उनकी तरबियत फरमाया करते थे, उनको बतलाया करते थे। तो मरते दम तक अपने आप को सीखने वाला समझें। ये तो दुनिया में एक दुनिया वालों ने निजाम बनाया ना कि इतना सीखना, इतना सीखना, इतना सीखना।
बल्कि शरीयत का हुक्म क्या है, शरीयत का हुस्न क्या है, उसमें यह बतलाया गया कि तुम मरते दम तक अपने आप को तालिब समझो, तालिब इल्म समझो, अपने आप को सीखने वाला समझो। मुकम्मल जात वो अल्लाह ताला की है, और मखलूक में पैगंबरों की जात मुकम्मल है, और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे अकमल और मुकम्मल और कामिल जात है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल यह था, जुम्मे वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात जो है वो फर्ज के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, और उसके बाद एक रिवायत के मुताबिक 6 रकतें, एक के मुताबिक जो है वो 4, और जो ज्यादा राजे कौल है वो यही है कि 4 कम अज कम रकातों का वो एहतमाम करना बहुत जरूरी है। और इसका हुक्म आम सुन्नतों की तरह नहीं है, बल्कि ये सुन्नत मुअक्कदा हैं, इसका अदा करना बहुत जरूरी है। तो तब जाके जुम्मे के दिन की जो फजीलत है ये हमें हासिल होंगी। और वो फजीलत मैंने इब्तिदा में जिक्र की, कुछ अहबाब बाद में आए, मैं फिर भी जिक्र किए देता हूं। हदीस पाक के अंदर आता है कि जो बंदा इस तरह जुम्मे की नमाज का एहतमाम करता है, अगले जुम्मे तक की उसके सगीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। तो इस एहतमाम के साथ जो है ना हमने पढ़ना है। और इस दिन जिस तरह इबादत का सवाब है, अल्लाह के रास्ते में सदका अदा करने का भी इतना सवाब। और ये याद रखिएगा, सदका अदा करते रहना चाहिए, बुरी मौत से इंसान को बचाता है। और सबसे करीबी सदके का मुस्तहिक कौन है? आपके करीबी रिश्तेदार हैं, आपके खूनी रिश्तेदार हैं, जो अकरबा जिनको कहा जाता है, उन पर अगर आप सदका करेंगे आपको दोहरा अजर मिलेगा, एक सदका अदा करने का और दूसरा अकरबा परवरी का। ये ना हो कि बाहर हम सखी बने फिरें, अंदर घर के अंदर मेरा भाई जो है वो नादार हो, वो मुस्तहिक हो, या मेरा पड़ोसी जो है वो मुस्तहिक हो, बाहर मैं सखावत करता फिरूं, मैं बाहर सखावत करता फिरूं, अंदर मेरे खानदान, मेरी बिरादरी और मेरे अजीज व अकारिब रिश्तेदारों में कोई मुस्तहिक बैठा हुआ है। तो सबसे पहले इसका यह हक है कि जुम्मे वाले दिन जो है ना खास तौर पर सदके का भी एहतमाम करना चाहिए, इस पर भी अजर व सवाब है। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अपनी अपनी बिसात की बात है, अपनी अपनी ताकत की बात है। अगर किसी की ताकत है तो 10 रुपए सदका कर दे, अगर इससे बड़ी ताकत है 50 कर दे, 100 कर दे, जितना अल्लाह ने दिया है। और सदके के मुतालिक ये बात सुन लीजिएगा, जब आप अदा करेंगे 10 गुना अल्लाह ताला आपको दुनिया में ही अता फरमाएंगे। इसका भी एहतमाम बहुत जरूरी है जुम्मे वाले दिन खास तौर पर। और फिर हदीस पाक के अंदर आता है कि इस जुम्मे वाले दिन एक खास घड़ी है कि उसमें जो भी दुआ मांगी जाए वो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। लेकिन अगर कोई पूरे दिन जुम्मे का एहतमाम करे तो उस घड़ी को वो पा लेता है, अल्लाह पाक उसको भी इसका अजर और सवाब जरूर अता फरमाते हैं। लेकिन मुहक्किकीन फरमाते हैं इस रिवायत के झेल के अंदर कि 2 वक़्त ऐसे हैं जो कबूलियत के हैं। एक जो है जुम्मे वाले दिन असर की नमाज के बाद का जो वक़्त होता है, यह बड़ा कीमती वक़्त होता है। तो इसलिए मशाइख उसमें दुरूद पाक पढ़ने का भी एहतमाम करते हैं। आप कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम करें, जिक्र व अस्कार का जो है वो एहतमाम करें, यह कबूलियत का खास वक़्त होता है। और फिर इसी तरह बाज़ मुहक्किकीन फरमाते हैं नहीं, 2 खुतबों के दरमियान में जो वक्फा होता है ना, ये कबूलियत की घड़ी होती है। उस वक़्त अपने अपने दिल के अंदर अपनी हाजतों को वो जाहिर करना चाहिए। और अल्लाह ताला तो सुनने वाले हैं, समीउन बसीर है। आप होंठ ना भी हिलाएं, दिल में ख्याल कर लें, अगर होंठ हिलाएं तो अल्लाह ताला फिर भी जानता है, लेकिन मांगना जरूर है। ये कबूलियत की घड़ियां हैं, इनमें गाफिल ना हो। और इसी तरह जुम्मे वाले दिन जो है ना खास तौर पर एहतमाम करना है, मसलन अपनी निजाफत का, अपनी पाकीज़गी का। भाई हर बंदे को चाहिए होती है कि मेरा बदन मैल कुचैल से पाक हो। हर बंदा ये चाहता है कि पसीने की बदबू से मेरा जिस्म पाक हो, और उसके लिए वो नहाता है, गुस्ल करता है। लेकिन इसी जुम्मे वाले दिन ये नहाना हो, इसका एहतमाम हो, एक तो पाकीज़गी भी हासिल हो जाएगी और अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल हो जाएगी। तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें ये चंद घड़ियां, चंद लम्हात जो हैं अल्लाह ताला ने हमें ये अता फरमाए हैं। वगरना किसी भी वक़्त इंसान की जिंदगी का खात्मा हो सकता है, किसी भी हालत में हो सकता है। कोई बैठे बैठे जो है उनकी रूह परवास कर जाती है। कई बंदे आपको सामने नजर आएंगे, गेट पार करेंगे, उधर से बाहर जाएंगे, पता चलेगा कि चले गए।
तो उससे पहले पहले इन सुन्नतों को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना है। अपनी जिंदगी को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से आरास्ता करना है, अपने महबूब के तरीके को इख्तियार करना है। रोजाना के एतबार से अजर व सवाब आपको मिलता रहेगा। देखिए, हम कपड़े तो जरूर पहनते हैं ना, कपड़े सारे पहनते हैं, माशाल्लाह सब ने पहने, एहतमाम भी कर, लेकिन दाएं तरफ से अगर कपड़े की इब्तिदा करेंगे, फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जिंदा होगी और इस पर आपको अजर व सवाब भी मिलेगा। इसी तरह हर बंदा जो है ना वो खुशबू लगाने का एहतमाम करता है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के करेगा, उसका ये खुशबू लगाना भी इबादत है। मुस्कुराता तो हर कोई है, लेकिन कोई आदमी इस नीयत के साथ वो मुस्कुराए कि मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ जो है मुस्कुराया करते थे, वो मुस्कुराएगा, इस मुस्कुराहट पर भी उसको अजर व सवाब मिलेगा। रास्ते में तो वैसे भी चलता है, कहीं कोई तकलीफ दे चीज हो, ये सुन्नत समझकर कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी इस तरह थी, मैं इस कूड़े करकट को या कोई तकलीफ देने वाली चीज को दूर करता हूं, उसको एक रिवायत के मुताबिक सदके का भी सवाब मिलेगा और दूसरा जो है वो सुन्नत जिंदा करने का भी उसको अजर व सवाब मिलेगा। दीन इस्लाम मुश्किल नहीं है। दीन इस्लाम सिर्फ हाथ में तस्बीह पकड़कर कोने में बैठने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम सिर्फ मस्जिद के अंदर बंद रहने का नाम नहीं है। दीन इस्लाम यह है कि आप जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर हो, किसी भी काम के अंदर हो, किसी भी मामले के अंदर हो, लेकिन अगर आप फर्ज नमाजें अदा करते हैं, आप ताजिर हैं तो तजारत करना भी आपकी इबादत है। आप जमींदार हैं तो आपका जिम्मेदारा करना भी ये इबादत कहलाएगा, बशर्ते कि अल्लाह ताला के अहकाम को हम पूरा करने वाले बन जाएं। तो आज जुमे की नमाज के मुताल्लिक आपके सामने जिक्र किया गया। आखिर में फिर अहबाब, क्योंकि इस पर अमल करना बहुत जरूरी है कि जुम्मे की जो नमाज है, जिस तरह 2 रकात ये फर्ज हैं, इसके बाद 4 रकात अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है और उस पर 2 मजीद और पढ़ लें, ये 6 रकतें हुई। अगर कोई 6 रकत पढ़ेगा, दोनों रिवायत पर उस पर अमल हो जाएगा, लेकिन अगर किसी ने 4 भी पढ़ ली तो फिर भी जो है उसका जुम्मा अदा हो जाएगा। अगर आप सुन्नत मुअक्कदा को जानबूझकर छोड़ देंगे तो आपको जुम्मे की नमाज का सवाब नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम एहतिमाम से जो जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए यहां पर आए हैं, तो इस अजर व सवाब को पूरा हमने लेना है। अगर आप यहां पर पढ़ लें तो तब भी आपको अजर व सवाब मिलेगा। अगर कोई घर के अंदर पढ़ने का उसका एहतमाम हो, मामूल हो, तो वो घर के अंदर पढ़ सकता है, लेकिन बहरहाल पढ़ना वो जरूरी है, क्योंकि बाज लोग इसको जरूरी नहीं समझते। वो फर्ज अदा करने के बाद अपने कामों में, अपने घरों के अंदर मशगूल रहते हैं और इस तरह वो जुम्मे की फजीलत से महरूम रह जाते हैं। अल्लाह करीम से यही दुआ है कि रब्बुल आलमीन जो कुछ कहा गया, सुना गया, अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।